Dear students, class 4th 11th chapter James and the Giant Peach. We will be discussing the reference to the context, question answers in this video. Let's begin with the reference to the context. A. Read these sentences and answer the questions. I don't like this at all. Who said this? जेम्स के साथ जो लेडी बर्ड थी ना पीच के ऊपर, द लेडी बर्ड सेड दिस. हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग टू? वो किससे बोल रही है? द लेडी बर्ड इज़ टॉकिंग टू जेम्स. वॉट डिड द स्पीकर नॉट लाइक? लेडी बर्ड को क्या पसंद नहीं है? एक्चुअली क्या था? जेम्स एंड हिज फ्रेंड्स नोटिस स्ट्रेंज थिंग्स at top of a huge cloud, but they drifted near the cloud. They understood that these things were actually living creatures. These creatures looked shadowy and pale. They were not liked by the ladybird at all. जब वो लोग ऊपर उड़े ना कि क्लाउड के, तो उन्होंने क्लाउड के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी सी चीज़ें देखी थी स्ट्रेंज, जो कि क्लाउड मैन थे एक्चुअली. तो लेडी बर्ड उसे लाइक नहीं कर रही थी, डर रही थी एक्चुअली. Oh dear, I am glad I am blind and can't see them. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Who said this? The earthworm said this. Why was the speaker glad to be blind? क्यों उसे अच्छा लगा कि मैं blind हूँ? The earthworm was glad to be blind as he did not have to see the cloudman who looked thin, pale and ghostly. क्योंकि उसे वो बहुत डरावने लग रहे थे. जैसे कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे तो कह रहा थैंक गॉड मैं तो अंधा हूँ, देख ही नहीं पाऊंगा इन्हें. ठीक है. What was the speaker afraid of doing? क्या डर था उसको? The earthworm felt that he could scream. He would scream. उसे लग रहा था कि अगर वो देख पाता तो उन्हें देख के चिल्ला पड़ता. On seeing these creatures, इनको देखकर वो चिल्लाने लग जाता. तो उसे थैंक गॉड मैं अंधा ही हूँ, दिख नहीं रहे. थर्ड, there is nothing to be afraid of here. Who said this? Centipede ने कहा था. The centipede said this. Who was the speaker not afraid of? किसकी डर नहीं था? The centipede was not afraid of the cloudman. Why do you think the speaker was not afraid? आपको क्यों लगता है क्यों centipede क्यों डरी हुई नहीं थी? The centipede was not afraid of the cloudman because he felt that these creatures were mad as they rolled clouds into balls which looked like large white marbles. क्योंकि उसे लग रहा है ये तो पागल हैं, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, क्लाउड्स को रोल कर रहे हैं और उसमें से मार्बल्स निकाल रहे हैं. These balls were then collected by the cloudman in large piles beside them. तो इसमें वो उसे कुछ भी परेशानी नहीं कर रहे थे, तो उसे डर नहीं लग रहा था. Last, all right boys, that's enough. Get the shovels. किसने कहा? One of the cloudmen said this to the rest of them. बाकी और cloudmen से कहा. What happened next? उसके बाद क्या हुआ? Immediately after this, all the cloudmen immediately let out a strange pitch whoop of joy and started jumping up and down and waving their arms in the air. Then they picked up their shovels. और वो हाइशा जैसे जोर लगा के हाइशा करते ना, ऐसे करके मार्बल्स को धक्का देने लगे. What did they do with the shovel? उन्होंने शॉवल से, वो जो औजार था इस तरीके का, उससे क्या करा? The cloud man began shoveling the pile of marbles as fast as they could over the side of the cloud into space. वो ज़मीन पे जो मार्बल्स का पाइल बन गया था उसे धकेलने लगे थे. ठीक है. अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. What were James and his companions sitting on? जेम और उसके साथी किस पे बैठे हुए थे? James and his companions were sitting on the top of a giant peach. आप लोग giant मत बोलना, it's a giant. ठीक है. What strange thing did they see? उन्होंने क्या अजीब सी चीज़ देखी? Important question है. As James and his friends drifted silently past a massive white cloud, जैसे वो एक बड़े से white cloud के बराबर में से गुजरे, they saw on the top of it, उन्होंने उसके टॉप पर देखा a strange tall wispy looking things that were about twice the height of the ordinary man. उन्होंने कुछ देखा, कुछ ट्रांसपेरेंट सी परछाई टाइप की कोई लंबी लंबी चीज़ें देखी जो कि एक ऑर्डिनरी मैन की हाइट से दुगनी हैं. वो उन्होंने देखा और वो क्या थे? क्लाउड मैन. थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है. डिस्क्राइब द क्लाउड मैन. आखिर ये क्लाउड मैन थे कौन? एक्चुअली ये थे ही नहीं ना कुछ, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Answer is, the cloudmen were tall, wispy, wrath-like, shadowy, white creatures who looked as though they were made up of a mixture of cotton wool and candy floss and thin white hair. वो कुछ बड़े बड़े से wispy, धुंधले से, shadow टाइप के, कैंडी फ्लॉस टाइप के, कॉटन वूल के जैसे, रुई जैसे कुछ शैडो फिगर्स थी जो कि वाइट हेयर थे जिनके. आप इमेजिन कर सकते हो बादलों जैसे थे, तो उनका नाम क्लाउड मैन है ना. आगे चलेंगे.
वट वर द क्लाउडमैन डूइंग, आखिर क्लाउडमैन कर क्या रहे थे? द क्लाउडमैन वर रोलिंग हैंडफुल ऑफ क्लाउड्स इन देयर फिंगर्स, वो फिंगर्स में क्लाउड्स को रोल कर रहे थे अनटिल दे टर्न इनटू व्हाट लुक्ड लाइक वाइट लार्ज वाइट मार्बल्स, जब तक कि वो वाइट लार्ज वाइट मार्बल्स की तरह नहीं बन सकते। मार्बल यानी कुछ चमकीली चमकी क्रिस्टल बॉल्स। देन दे वुड टॉस द मार्बल्स टू वन साइड, फिर वो सारे मार्बल्स को एक तरफ धक्का दे रहे थे। एंड क्विकली ग्रैब मोर बिट्स, ये हिट्स नहीं बिट्स है, मोर बिट्स ऑफ क्लाउड एंड स्टार्ट ओवर अगेन, और फिर वो और बादलों को अपने हाथ में खींच कर फिर से वही प्रोसेस गोल गोल घुमाने का कर रहे थे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस वो बार बार कर रहे थे। हाउ डू द पीपल इन द वर्ल्ड गेट अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ द क्लाउडमैन, जो दुनिया के लोग हैं वो क्लाउडमैन के वर्क से कैसे अफेक्ट हो जाते हैं, क्या करते हैं ऐसे क्लाउडमैन? द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव हेल स्टोन्स, लोगों पे ओले गिरने लगते हैं, शावर्ड ऑन देम बाय द क्लाउडमैन, ये इसी के साथ लिखना आप। तो दुनिया के जो लोग हैं उन पे क्लाउडमैन का काम ओले बन के गिरता है, ठीक है, और कहीं कहीं तो स्नो भी स्नो बन के भी शावर होता है। तो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी हो गए हैं। चिल्ड्रन ये लास्ट चैप्टर था आपकी बुक का, ये सब कंप्लीट करा दिया है मैंने, बुक एक्सरसाइजेस भी करा दी हैं। अब आप जब क्लास 5 में आ जाओगे तो डोंट फॉरगेट टू कीप वॉचिंग सक्सेना ट्यूटर्स, बिकॉज क्लास 5 का पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। सो इफ़ द वीडियोज़ आर हेल्पफुल, आप थैंक यू के सपोर्ट में थम्स अप कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बाय बाय।